السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج ہم دوبارہ حاضر ہیں میڈیکل بلنگ کے حوالے سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے لیکچر کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ۔ آج ہم دوبارہ ایک نئے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ ڈاکومنٹ کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں کہ زیادہ تر جو ڈاکومنٹ یوز ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان کا اسٹینڈ فار کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے۔ جیسے کہ اب ایک ڈاکومنٹ ہے AOB، اسی طرح ایک اور ڈاکومنٹ ہے EOB، اسی طرح ایک اور ڈاکومنٹ ہے COB، اب اسی طرح ایک اور ڈاکومنٹ ہے اس کو C3 کہتے ہیں، ایک اور ڈاکومنٹ ہے اس کو W9 کہتے ہیں، اور اسی طرح ایک اور ڈاکومنٹ ہے اس کو NF2 کہتے ہیں۔ اسی طرح کافی سارے ایسے C3 کے اندر کافی ساری سیریز ہیں، اس کے اندر C31 C32 C34 C33 یہ بھی جو ہے نا یہ ڈاکومنٹ فال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ERA ایک ڈاکومنٹ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح ہپا بھی ایک ڈاکومنٹ فال کرتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے سافٹ ویئر کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح ایک بل بھی ہوتا ہے، اور ایک سپر بل تو خیر ہم نے کافی زیادہ پڑھا ہوا ہے۔ اب یہ کافی سارے ہیں، ایک PHIB ہوتا ہے، پیشنٹ ہسٹری آف ایلنس اس کو کہتے ہیں۔ تو کافی سارے ایک انیشیل انٹیک بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کافی سارے ڈاکومنٹ ہیں۔ اب ان کا مطلب کیا ہے، یہ کب یوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک امپلائر فارم بھی ہوتا ہے۔ آج ہم ان کا ذکر کریں گے کہ کافی سارے ہیں، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان کو یہ کیوں یوز ہوتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کیوں پتہ ہونا ضروری ہے۔ ایک میڈیکل بلر کو ان کی جانچ پڑتال یا ان کی پہچان یا رائٹ جو ان کا یوز ان کا جو یوز کرنے کا رائٹ جو میتھڈ ہے کہاں پہ ہے۔ AOB کا مطلب ہے اسائنمنٹ آف بینیفٹ۔ یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر یہ چیز مینشن ہوتی ہے، پیشنٹ اس چیز کو ایگری کرتا ہے کہ جو وہ علاج لے رہا ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ ڈاکٹر ڈائریکٹ انشورنس کمپنی سے لے سکتا ہے۔ یہ ایک پاور آف وٹرنی ہوتی ہے جو پیشنٹ ڈاکٹر کو سائن کر کے ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے جو علاج دے رہے ہو، جو ٹریٹمنٹ دے رہے ہو، بجائے اس کے کہ انشورنس مجھے پے کرے میں آپ کو دوں، آپ ڈائریکٹ انشورنس سے لے لو۔ اب AOB ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جب بھی کوئی پیشنٹ پہلی دفعہ آتا ہے وہ لازمی اس کے اوپر سگنیچر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب EOB کیا چیز ہے؟ EOB جو ہے یہ ہے ایکسپلینیشن آف بینیفٹ، ایکسپلینیشن آف بینیفٹ ہے۔ یہ انشورنس کی طرف سے ہمیں کلیم کا ایز اے ریزلٹ کے طور پہ یہ ہمیں EOB وصول ہوتی ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوتا ہے جو کلیم ہے وہ پیڈ ہے یا ڈینائیڈ ہے یا کیا ریزلٹ ہے۔ کلیم کا جو ریزلٹ ہے وہ ہمیں EOB یا ERA، اگر ان دونوں کا ایک ہی ڈاکومنٹ کے دو نام ہیں، اگر کلیم کلیئرنگ ہاؤس کے تھرو بھیجا گیا ہے تو ہمیں ERA ریسیو ہوگا، الیکٹرانک ریمیٹنس ایڈوائس، الیکٹرانکلی ریمیٹنس پیسے ایڈوائس مطلب مشورہ، اور EOB ایکسپلینیشن آف بینیفٹ کہ جو پیشنٹ کو بینیفٹ دیے جا رہے ہیں اس کی ڈیٹیلز ہوگی اس ڈاکومنٹ کے اندر یا اس ڈاکومنٹ کے اندر۔ اگر کلیم الیکٹرانکلی سینڈ ہوا ہے تو ہمیں ERA وصول ہوگا، اگر پیپر کلیم سینڈ ہوا ہے جیسے فیکس ہے، بائی میلنگ ایڈریس ہے، تو پھر ہمیں EOB وصول ہوگا۔ ایکسپلینیشن آف بینیفٹ اور الیکٹرانک ریمیٹنس ایڈوائس، جب بھی ہم کلیم سبمٹ کریں گے ہمیں ایز اے ریزلٹ کے طور پہ جو ریسیپٹ وصول ہوگی، جو رسید وصول ہوگی، اس کا نام یا ERA ہوگا یا EOB ہوگا۔ یہ ایکسپلینیشن آف بینیفٹ ہے، اس کے اندر ڈینائل ریزن اور پیڈ اماؤنٹ کس طرح سے پے ہوئی، کتنی اماؤنٹ پے ہوئی، کتنی باقی ہے، الاؤڈ اماؤنٹ کیا تھی، ڈیڈکٹیبل، کو پے، کو انشورنس، پلان کیا تھا، ڈینائل ریزن کیوں ہے، پارشلی پیڈ ہے، کمپلیٹ ہے، کمپلیٹ ڈینائیڈ ہے، جو بھی ریزلٹ ہوگا وہ EOB یا ERA کی شکل میں ہمیں انشورنس سے وصول ہوتا ہے۔ یہ ڈاکومنٹ اس بات کو ریپریزینٹ کرتا ہے کہ پرووائڈر ڈائریکٹ انشورنس سے پیسے لے سکتا ہے،
ये डॉक्यूमेंट इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो डिनाइल जो क्लेम हमने भेजा था उसका रिजल्ट क्या है, ईओबी और ईआरए। सीओबी कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट, ये डॉक्यूमेंट इस बात को रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर पेशेंट जो है ना वो एक्सप्लेन करता है कि उसकी प्राइमरी इंश्योरेंस कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है और टर्शरी कौन सी है। मतलब इंश्योरेंस डिफाइन की जाती है, पेशेंट अपनी तरफ से इंश्योरेंस डिफाइन करता है कि उसकी प्राइमरी इंश्योरेंस कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है, टर्शरी कौन सी है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, इसमें से कौन सी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है, कौन सी टर्शरी है। तो ये डॉक्यूमेंट इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि पहले क्लेम किसके पास जाएगा, बाद में किसके पास जाएगा और उसके बाद किसके पास जाएगा। अब उसके बाद आता है C3 फॉर्म। ये ज्यादातर जो है ये इंश्योरेंस कंपनी रिक्वायर्ड करती हैं। ये डॉक्यूमेंट इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि पेशेंट की करंट सिचुएशन क्या है, क्या जो पेशेंट है वो इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही, इंप्रूवमेंट स्टॉप हो गई है या मजीद इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। मतलब जब भी इंश्योरेंस कंपनी रिक्वायर्ड करेगी कि आप हमें बताओ कि पेशेंट की करंट सिचुएशन क्या है, तो जो डॉक्टर है वो C3 फॉर्म बना के उनको भेजेगा। ये C3 फॉर्म रिप्रेजेंट करता है पेशेंट की करंट सिचुएशन को, ठीक है। उसके बाद आता है W9 फॉर्म। जो W9 फॉर्म है ना, ये जब भी कोई डॉक्टर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ इनरोल करता है या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को पहली दफा क्लेम भेजता है तो उसके साथ W9 फॉर्म जाता है। W9 फॉर्म के अंदर प्रोवाइडर की प्रॉपर डिटेल्स होती है, टैक्स इंफॉर्मेशन कि प्रोवाइडर जो है वो यूएसए गवर्नमेंट के साथ इनरोल है या नहीं है, डॉक्टर का लाइसेंस बना हुआ है या नहीं बना हुआ, डॉक्टर टैक्स पेयर है या नहीं है, डॉक्टर कितना टैक्स अदा करता है, क्या डॉक्टर का एमपीआई नंबर बना हुआ है या नहीं बना हुआ, टैक्स आईडी नंबर बना हुआ है या नहीं बना हुआ। बेसिकली जो W9 फॉर्म है ये डॉक्टर को टैक्स पेयर के तौर पे, जैसे हम कहते हैं कि फाइलर और नॉन फाइलर के तौर पे, ये रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि डॉक्टर कितना टैक्स पे करता है, डॉक्टर फाइलर है या नॉन फाइलर है। ये डॉक्यूमेंट इस चीज की रिप्रेजेंटेशन करता है। इसके अंदर प्रॉपर डॉक्टर की टैक्स मालूमात होती है, जाती मालूमात होती है, कब लाइसेंस बना, कितना टैक्स अदा करता है, टैक्स आईडी क्या है, एनपीआई नंबर क्या है। ये किसी भी इंश्योरेंस को भेजे जाने वाले पहले क्लेम के साथ ये अटैच होता है। अच्छा, NF2 क्या है? जब भी किसी पार्टी का एक्सीडेंट होता है, किसी भी पर्सन का जिसके साथ भी एक्सीडेंट होता है, तो ये जो पेशेंट है ये NF2 फॉर्म फिल करके पहले इंश्योरेंस कंपनी को आगाह करता है कि कब एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पे हुआ, किसकी मिस्टेक थी, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितनी इंजरी आई, किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, इमरजेंसी किसको चेक करवाया था, अब रेगुलर किस डॉक्टर से इलाज करवाना है। तो ये डॉक्यूमेंट इस बात की रिप्रेजेंटेशन करता है कि एक्सीडेंट कब हुआ, कहाँ पे हुआ, कितनी इंजरी आई, इमरजेंसी कहाँ से इलाज करवाया था, अब रेगुलर किस डॉक्टर से इलाज करवाना चालू कर दिया है। ये फॉर्म जो है ये पेशेंट भेजता है और इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करता है। मेडिकल बिलर तब तक नो फॉल्ट के क्लेम सबमिट नहीं कर सकता जब तक NF2 फॉर्म इंश्योरेंस कंपनी को वसूल ना हो जाए, ठीक है। ERA पे हमने बात कर ली। हिपा एक ऐसा फॉर्म होता है जो हर इंश्योरेंस जो हर प्रैक्टिस के सॉफ्टवेयर के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर सिग्नेचर करता है पेशेंट भी और डॉक्टर भी। पेशेंट भी इस बात को एग्री करता है कि उसके जो डॉक्यूमेंट हैं वो किस किस इदारे के साथ जो डॉक्टर है वो शेयर कर सकते। पेशेंट भी इस बात को एग्री करता है कि जो डॉक्टर है वो उसके जो डॉक्यूमेंट हैं वो किस किस इदारे के साथ शेयर कर सकता है और किस इदारे के साथ शेयर नहीं कर सकता। इसमें हद मुकर्रर होती है डॉक्टर की भी कि डॉक्टर किस किस वफाकी जैसे रिलेटेड कोई इदारे हैं या लॉ के इदारे हैं या हाई कोर्ट है, वहां पे पेशेंट की जो हिस्ट्री है, जो पेशेंट की मालूमात है, ये शेयर कर सकता है, ये नहीं कर सकता। हिपा एक ऐसा फॉर्म होता है जिसके अंदर डॉक्टर भी सिग्नेचर करता है और पेशेंट भी सिग्नेचर करता है। इसके अंदर पेशेंट की भी हद मुकर्रर है कि पेशेंट किस किस के साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर सकता है और डॉक्टर की भी हद मुकर्रर है कि डॉक्टर किस किस इदारे के साथ या किस किस कंपनी के साथ कौन कौन सी मालूमात शेयर कर सकता है या नहीं कर सकता। उसके बाद आता है बिल ये एक फॉर्म है जो मतलब जनरेट होता है, ये इनवाइस होती है जो एक मेडिकल बिलर क्लेम बनाता है
ये क्लेम भी कहलाता है, बिल भी कहलाता है, इनवाइस भी कहलाती है, चार्ज अमाउंट भी कहलाती है, चार्ज शीट भी। तो ये हम इंश्योरेंस को भेजते हैं। इसके अंदर पेशेंट की मालूमात होती है, इंजरी की मालूमात होती है, चार्ज अमाउंट होती है, क्या सर्विस दी गई, किसने सर्विस दी, कहाँ पे बैठ के दी। बेसिकली ये हैकवा फॉर्म भी इसको कहते हैं, ये बिल भी कहलाता है। ये भी हर सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब आते हैं पीएचआई की तरफ। पीएचआई जो है पेशेंट हिस्ट्री ऑफ इलनेस। इसके अंदर पेशेंट को अगर कोई पहले से मसला है, कोई ऐसी बीमारी जिसपे पहले इलाज दिया जा चुका है, कोई ऐसी बीमारी जो पहले से एग्जिस्ट करती है, कोई ऐसी बीमारी जिसपे पहले से इलाज चल रहा है, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। और कोई ऐसी बीमारी जो लॉन्ग टाइम से पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो पीएचआई डॉक्यूमेंट के अंदर या पीएचआई फोल्डर के अंदर प्रॉपर मौजूद होती है। अब इनिशियल इंटेक। इनिशियल इंटेक एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर पेशेंट की ज़ाती मालूमात भी होती है और पेशेंट की जो इंजरी मालूमात है, या पेशेंट को कब कब क्या क्या मसला है, पेशेंट कहाँ पे रहता है, नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है, घर में कितने अफराद हैं, एमरजेंसी किसको कॉल करनी है, पेशेंट को क्या क्या मसले मसाइल हैं, कहाँ पे जॉब करता है, कौन सी गाड़ी है। मतलब ये सारी चीज़ें इनिशियल इंटेक में आपको मिलेंगी। उसमें आपको पेशेंट का आईडी कार्ड भी मिल सकता है, पासपोर्ट की तस्वीर भी मिल सकती है। मतलब इनिशियल इंटेक के अंदर पेशेंट की A to Z मालूमात पड़ी होती है। कौन सी इंश्योरेंस है, इंजरी कब हुई, कहाँ पे हुई, किस जगह पे हुई, किसके सामने हुई, काम कहाँ पे करता है, क्या डेजिग्नेशन है, कमाई क्या है, कौन कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, घर में कौन कौन लोग हैं, एमरजेंसी में किससे रब्ता करना है। ये सारी चीज़ें इनिशियल इंटेक में मिलती है। एम्प्लॉय फॉर्म। एम्प्लॉय फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जब भी अगर कोई पेशेंट जो है वो कहीं पे काम करता है और उसको वर्क के दौरान इंजरी आ गई है, तो वो ये फॉर्म फिल करके अपनी कंपनी के अंदर जमा करवाता है और उसकी कंपनी के पास जो भी इंश्योरेंस एग्जिस्ट कर रही होती है, फिर वो सिग्नेचर करके उस इंश्योरेंस कंपनी में जमा करवाता है और उसकी इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, जो वर्क इंजरी होती है, वो उसको कवर करती है। ठीक है, आज हमने मुख्तसर से कुछ फॉर्म को एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसा फॉर्म जो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया और आप उस फॉर्म के बारे में जानते हैं, तो आप सवाल कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0301 330925। आप हमसे